Lost Spring, right, by Annie Hume. And for a brief revision of the previous lesson, उस दिन हम last day what did we do? We actually go through the first page or something first and the some portion of the second page, right, Yes, of sir. the text. And for a brief revision of the lesson, what we found is that it I mean, ये जो story है, the story talks about the plight of the poor people, plight of the poor children who are exploited either by their lack of education or poverty, or their parents are also helpless as well as the society, and they work as child labor. Okay, and the main point that we have discussed yesterday is that both children and elders are rag pickers, and for them garbage hold different meanings. Okay, is meanings livelihood, gold. For elders it is means of livelihood, but for children it is a gold mine. They got surprises from it, coins, currency note, etc etc. ओके, ये जो चिल्ड्रन है जो चाइल्ड लेबर में एंगेज है उनको पास स्कूलिंग और वेयरिंग शूज और इसका कोई भी चांसेस नहीं है. दे आर द गैंग ऑफ रैक पिकर्स. ओके, वो रैक पिकर्स है, बेयर फुटेड, उसके पास जूता भी नहीं है, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स, राइट, वी डिड ऑल द पॉइंट्स. एंड now for a brief discussion of the lesson that we did yesterday, we will be uh, we will be moving on to discuss certain points of the text, right? So पहले ये बता, did you read the text? Text पढ़ा है? You all go through the text? Okay, चलो कोई बात नहीं, just ask you some few questions. Okay, tell me about something about Sahib e Alam. Okay, last point, Sahib e Alam. Lord Anyone? of Universe. Okay, it Lord of means, Universe. okay, it means the Lord of the universe. Okay, very good. Next point. Who is Shahab Alam? Shahab Alam कौन है? Rag picker. Rag Okay, picker. okay. Works as a rag picker. Where? What is the name of the place? Sima, Delhi. Simapur. Dimapur. Simapuri. Yes, near 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 the periphery Delhi. of Delhi. Very good. Anything else about him? Anything else? Sir, question repeat. ये जो साहब आलम है उसका बारे में बताइए. फास्ट है कि ये जो साहब आलम है उसका जो मीनिंग है वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है. सेकंड पॉइंट आया है कि वर्क्स एज अ रैग पिकर एंड he lives in the slums of Simapuri near the periphery of Delhi. थर्ड पॉइंट. सर जो इनके एंसेस्टर्स थे ना सर, वो ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है वहां से आए थे 1971 में. ओके, ancestors were from
Dhaka, Bangladesh. What was the reason? Why did they come to Delhi? In search of job. Storms due to hailstorm that took place in Dhaka. Okay, Their fields and Okay. homes swept away, sir. okay. Due to storms and floods, right? And they came here in search of livelihood, right? Okay, that's good. We will be asking for a few meanings, right? So a few meanings like okay. So what is the meaning of the verb swept away? Swept away का meaning क्या है? Destroy, sir. Right. Destroy. Okay. Remove. Destroy, removing something. Okay. And glibly, glibly. Repeat. In low voice. No, glibly is not a low voice. Speaking careless. Not much thinking. Okay. Very good. Speaking without And way. much thinking. Yes, good. In a careless, manner. Without careful thoughts. Yes. Matters. Say something in a To say something in a low voice. voice. Inaudible. Okay. Say To say something something in a low voice. in a low voice. Inaudible. Right. Yes, Follow. Meaning Meaning Without having any value, sir. जिसकी कोई value ना हो. without any significance. without having any value or significance. Okay. Okay. So now we'll be moving into our today's lesson, right? And so we'll be starting with, we'll be stopping at that point. Over the months, I have come to recognize each of them, right? So yes, it's sir. a, yes, it's a story between the narrator and and whom? Oh, Rag picker. between the narrator and the rag picker, right? So what's happening here is that, why aren't you wearing chappal? I ask one. So why the narrator was curious to know कि ये लोग चप्पल क्यों नहीं पहनता है. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. तो उन्होंने ऐसे बोला कि जो चप्पल है ना वो शेल्फ में है, and he and his mother did not bring them down.
क्योंकि why did his mother not bring them down? Why? What was the reason? Poverty. Because they have no money to buy Because chappal. they have no money to buy the chappal. And another thing is that ये जो चप्पल है ना, they Expensive. yes, they seem to be very Expensive. expensive to them. ये उन लोगों का पास बहुत एक्सपेंसिव चीज है, राइट? And even if she did, he will throw them off. Adds another, who is wearing shoes that do not match. Sorry. So even if she did, even if she brings them down from the shelf, he will throw them off. उन्होंने इसको कहीं ना कहीं फेंक देगा. Adds another, who is wearing shoes that do not match. दूसरे एक ने बताया जिन्होंने शूज पहन के रखा है लेकिन दे डू नॉट मैच, उसका कोई मैचिंग नहीं है. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. Okay, so ऑथर ने जब बताया, ऐसा क्या है कि हम जो करते हैं कि हम जो है मैचिंग शूज, वी जनरली वेयर मैचिंग शूज, राइट? लेकिन उसका जो शूज है वो मैचिंग नहीं थे. जब ये नैरेटर में बताया कि ये जो है आपका शूज तो मैचिंग नहीं है, ही शफल्स हिज फीट. उन्होंने फीट को शफल किया. शफल का मतलब मूविंग और स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शफल. आई वांट, उन्होंने उसका जो है उसका उन्होंने शफल किया लेकिन कुछ बताया नहीं. आई वांट शूज, I want shoes. Says a third boy who has never owned a pair all his life. जूता चाहिए. कौन बताया? एक जो तीसरा बॉय है उन्होंने बताया who has never owned a pair all his life, जिसका पास पूरा लाइफ में एक भी पेयर नहीं थे. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. इन्होंने तो बहुत सारे कंट्री में ट्रैवल कर लिया, ये जो ऑथर है एनएसयूम. सो उन्होंने ये देखा है कि जो ज्यादातर जो बच्चे होता है उसका जूता नहीं होता. दे वॉक बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स. और ऐसा नहीं है कि ये सिटी में इसका कोई अलग सा कंडीशन है और विलेज में कोई डिफरेंट कंडीशन है. ऐसा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. Be it in the city or be it in the village, people across the country tend to walk barefoot. Okay, ज्यादातर उसको barefoot ही मिलता है. It is not lack of money. ज्यादातर क्या है कि ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, but a tradition to stay barefoot. लेकिन ये एक ट्रेडिशन जैसा हो गया कि barefoot रहना is one explanation. इसका एक एक्सप्लेनेशन ऐसा हो सकता है कि ये जो बेयरफुट रहना ये एक ट्रेडिशन बन चुका है और पूरा टाइम ये जो लैक ऑफ मनी होंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये एक ट्रेडिशन हो गया. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. आई वंडर, इसका मतलब क्या है कि ये इसका मतलब है कि उन्होंने सोचने लगा कि ये एक ऐसा एक्सक्यूज हो सकता है. कौन सा एक्सक्यूज? कि barefoot, being barefoot, let's use a better word, remaining barefoot
Okay, remaining barefooted has become a tradition. Okay, ये एक ऐसे एक्सक्यूज हो सकता है कि बेयरफुट रहना ही इंडिया का ट्रेडिशन है कि इसमें क्यों? क्योंकि इट इंडिकेट्स a perpetual state of poverty. Perpetual मतलब eternal, never ending, right? Perpetual मतलब eternal, never ending. तो perpetual state of poverty, ये जो never ending state of poverty है ना, poverty है ना, इसको इसको हम बताना नहीं चाहते हैं कि इंडिया ऐसे एक पुअर कंट्री है, इसको इसमें बच्चे को भी पढ़ने के लिए पहनने के लिए जूता नहीं मिलता है, ये वो। इसको हम एक ऐसे एक्सक्यूज से इसको हम एक्सप्लेन है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिया में बेयरफुट रहना ट्रेडिशन बन गया। ओके, आई रिमेम्बर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। उसका एक स्टोरी याद आ गया, एक बंदा था उडुपी से, उन्होंने बताया एज अ यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest. So वो जब स्कूल जाने का, वो जब बच्चे थे उस टाइम he was going to school past an old temple. Okay, going past का मतलब है पास से गुजरना। ओके, गोइंग पास्ट, गोइंग पास्ट मतलब वॉकिंग, walking by something, right? A temple or something. Not walking by, going past का मतलब है पास से गुजरना। Okay, like when you are coming to school, you have to go past the university campus, right? That's the meaning. Where his father was a priest, जिधर उसका जो पापा थे वो priest थे, he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो उन्होंने जो ये जो टेम्पल है, उन्होंने he asked to the god for a pair of shoes, कि एक जूता मिल जाए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. Okay, 30 साल बाद उन्होंने गया, वो जो टेम्पल है उसमें, जो 30 साल बाद टेम्पल का क्या है, टेम्पल का जो हालत है वो है कि उसमें कोई भी नहीं है, राइट? और उसका कोई मेंटेनेंस भी नहीं हुआ, डिसोलेट, राइट? डिसोलेशन, ओके, चलो ही वर्ड लिख देता हूँ। डिसोलेशन मतलब uninhabited, right? In a state of emptiness and hopelessness. Okay, तो एयर ऑफ डेजोलेशन का मतलब क्या है कि वो जो मंदिर थे, वो जो टेम्पल थे, उधर उधर कोई भी नहीं है इस टाइम। वो प्लेस जो है वो बिल्कुल अनइनहेबिटेड है, इन अ स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस एंड होपलेसनेस। वो इस टाइम एम्प्टी भी है, उसमें कोई भी नहीं है। इन द बैकवर्ड, मंदिर का पीछे जो प्लॉट थे उसमें, वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। उसका पीछे रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स थे। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. So, एक एक बच्चे का डिस्क्रिप्शन है जो अभी अभी स्कूल से आया, जो यूनिफॉर्म में है, ओके, ग्रे यूनिफॉर्म में है, एंड ही इज वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, अराइव्ड पैंटिंग। ओके, तो उन्होंने आया कैसे कि ही इज पैंटिंग, एंड ही इज पैंटिंग मीन्स, what is the meaning of the word panting? Anyone? Panting का मतलब what is the meaning of the word panting? Apna sir. Okay, in a state of
Okay, in a state of breathlessness, right? In a state of breathlessness. Taking short and quick breath. Yes, very good. Taking short and deep breath, right? And threw his school bag on a folding bed. उधर एक folding bed थे, उन्होंने उसको उसका जो बैग है उसको फेंक दिया. And looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. तो उन्होंने जब ये जो स्टोरी है इसमें जो वो जो बंदा था ना उडुपी से वो जब गुजरते हैं वो जो मंदिर का पास से उन्होंने किया प्रे किया कि मेरा एक जूता मिल जाए. जब उसका जूता मिला उन्होंने और एक प्रेयर भी रखा है. क्या है कि लेट मी नेवर लूज देम. वो इसको खोना कभी नहीं चाहते. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. जो गॉडेस है शी ग्रांटेड हिज प्रेयर. यंग बॉयज like the son of the priest now wore shoes. So they now got shoes. But many others, like the rat pickers in my neighborhood, remain shoeless. लेकिन ये जो रैक पिकर्स है और रैक पिकर्स के अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग अभी भी शूलेस है, जिनको पहनने के लिए जूता नहीं मिलता. My acquaintance, okay, with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Okay, this is a very important line. इसमें क्या है, शिमापुरी का जो डिस्क्रिप्शन है ना, राइट, अंडरलाइन इट. शिमापुरी का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्क्राइब शिमापुरी. ओके, सो माई acquaintance मतलब पहचानना, सॉरी, having the knowledge of Context. something. Yes, Context. फिर से बता, सुनाई नहीं दिया. Context, sir. हाँ, कॉन्टैक्ट, acquaintance, having contact with someone or knowledge, right? So my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi. जो सिटी है वो दिल्ली का पेरिफेरी में है. Yet miles away from it metaphorically. This line, yet miles away from it metaphorically. This is a very important line. Okay, underline it. क्या है कि ये जो सिटी है ये दिल्ली का पेरिफेरी में है, दिल्ली का पास ही है, लेकिन मेटाफोरिकली का मतलब है, लेकिन दिल्ली में जो सुविधाएं मिलता है, जो फैसिलिटीज मिलता है, दिल्ली क्या है, दिल्ली, न्यू दिल्ली है द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. ओके, इसमें जो जितना सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, एजुकेशन, जॉब, एनीथिंग, तो दे आर miles away from it. They are not getting any of the facilities, right? So that's the saddest part of the thing. क्या है कि they are not getting any of the facilities of the city of Delhi. इसीलिए क्या है कि वो दिल्ली का पास में ही है, लेकिन वो दिल्ली से बहुत दूर है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Right, okay. Sahab's family is among them. साहब का जो फैमिली है वो भी उसमें एक है. Squatters मतलब the persons who
have occupied land and living there unlawfully. Okay, squatters meaning है persons who have occupied a land and living there unlawfully, right? So जिधर population बहुत ज्यादा है, like in the cities of Delhi, कोलकाता, मुंबई एक्सेट्रा, जिधर भी जमीन खाली मिलती है उधर ही कुछ लोग आके उसमें बैठता है, राइट? क्या होता है कि when we are trying to make our house, राइट? वो तो क्या है कि आपका खुद का जमीन पे ही होता है ना, बट उधर क्या होता है, दिस इज नॉट अबाउट, they are not building homes on their own land, okay? they have occupied a piece of land unlawfully and they will be living there, right? क्योंकि वो लोग बांग्लादेश से आया है, वो इंडिया का सिटीजन भी नहीं है, तो उनका पास जमीन खरीदने के लिए जितना सारे डॉक्यूमेंट्स होता है, सबसे सबसे बड़ा ये जो है, उनका पास पैसा भी नहीं है, तो दे couldn't buy a piece of land, right? So they didn't have any option but to squatter, like, okay, persons who have occupied a land and living there unlawfully. Shimapuri was then a wilderness. सीमापुरी में उस टाइम कुछ भी नहीं थे, वो वाइल्डनेस में थे, ओके? वो वाइल्ड टाइप का थे, ओके? वाइल्डनेस का मतलब है कि उसमें कल्टीवेशन, वेस्टलैंड। हाँ, वेस्टलैंड, वेरी गुड। देयर आर सम मीनिंग्स है कि इनहॉस्पिटेबल है, ओके? What was Don? वाइल्डनेस, ओके? इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल मीन्स अच्छा प्लेस नहीं है, ओके? खतरनाक प्लेस है, बैड लिविंग कंडीशन है, बैड कंडीशन, Non-hygienic. yes, not non-hygienic, okay? And inhospitable, bad condition, non-hygienic, uninhabited, uninhabited, okay? और दूसरा है कि uncultivated, okay? And uncultivated, right? So this is the thing, inhospitable, bad condition, non-hygienic और uncultivated, कुछ जो है फसल भी होना उस टाइम, कुछ भी नहीं थे उधर। It still is, but it is no longer empty, okay? It is ऐसा ही है, वाइल्डनेस में ही है, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है। In structures of mud with roofs of tins and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. It describes the condition of the village, of the settlement, okay, of the settlement सीमापुरी। उधर क्या है, जो रूफ है उसमें भी कोई कंक्रीट रूफ ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर का कुछ फैसिलिटी नहीं है, ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, ओके? सो फॉर लिविंग पीस, फॉर लिविंग अ लाइफ, जो चीज नेसेसरी होता है उसका कुछ भी उधर अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल दे आर लिव 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter lists and enable them to buy grain. Okay? उन्होंने इधर 30 साल से रह रहा है, इसी एक ही कंडीशन में, कंडीशन का कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसका पास
कोई आइडेंटिटी नहीं है, ओके, कोई भी परमिट नहीं है, उधर आके वो लोग जो बैठ गया उसका जो कोई परमिट होना चाहिए वो भी नहीं है, बट विथ रेशन कार्ड, उसके पास रेशन कार्ड है। ये रेशन कार्ड क्यों है? पहले बता रहा है उसके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उसके पास, उन लोगों के पास रेशन कार्ड है। व्हाई? Because they were below poverty line. Yes, They were in yes, poverty line. they were below poverty line. Another thing, another point. उस एरिया के पॉलिटिशियंस ने वोट के लिए उन्हें राशन कार्ड ये सब दे दिया सर, खाना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है कि वो लोगों का जो लाइव्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन उन लोगों का जो वोट है, उन लोगों का जो वोटिंग है वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उधर जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने उसको राशन कार्ड इशू कर दिया, क्योंकि राशन कार्ड में क्या होगा, खाना मिलेगा, राशन मिलेगा, जो बिलो पॉवर्टी लेवल में जो राशन मिलता है इंडियन गवर्नमेंट से वो मिलेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरत है वो क्या है, फूड का तो जरूरी है, उन लोगों के लिए फूड जरूरी है, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए वो जो वोट बैंक है, वो जो वोट है, उन लोगों का जो वोट है वो और भी जरूरी है। इसलिए उसका पास इसलिए उसका पास रेशन कार्ड के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन रेशन कार्ड है, क्योंकि इसमें दो दो बेनिफिट है। एक है उन लोगों को खाना मिल जाएगा और दूसरा है पॉलिटिशियंस को वोट मिल जाएगा। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फूड, विदाउट फूड यू कुडंट सर्वाइव। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Okay? कि दिन एट द एंड ऑफ द डे खाने का कुछ मिल जाए और भूखा पेट में सोना नहीं पड़े, तो वही अच्छा है और कुछ भी नहीं चाहिए। सो उससे बेहतर यह है कि हम इधर रह जाएंगे, एंड वो उससे बेहतर है उधर जाने से जिधर जो फील्ड्स है उससे कुछ भी ग्रेन्स नहीं मिलता। say a group of women in tattered sarees, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, right? Okay, so one group of women ने बताया, okay, कि ये अच्छा है कि उधर जाने से हम इधर ही रह जाए, क्योंकि इधर क्या है, एट द एंड ऑफ द डे खाने का कुछ भी मिल जाए तो दैट विल बी द बेस्ट। Okay, what is the meaning of the word tattered? फटी Okay, torn, फटी हुई साड़ियाँ। torn clothes. Okay, right? तो उनको पास जो जो बेसिक नेसेसिटी होता है, by the way, what are the basic necessities? जल्दी बता। Basic necessities of life: फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, food, clothing. Okay, रुक जा, food, clothing, शेल्टर, shelter, और हाँ, Health, health, health. Very good. Anything? Last one. education, education. Yes, very good, education. So safe drinking water comes under the category of food, okay, or maybe in the health. Food, clothing, shelter, health and education, these are the 5 necessities. तो उनका पास ये 5 necessities का एक भी नहीं है। फूड उसको मिल जाता है, रात में भूखा सोना नहीं पड़े तो वही अच्छा है। अच्छा, क्लोथिंग नहीं है, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है। शेल्टर, टीन रूफ का माड हाउस है। हेल्थ का तो बात, हेल्थ और एजुकेशन का तो बात नहीं करना ही सही है। सो दे आर डिवॉइड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. यह है कि जिधर ही खाना मिलता है ये लोग उधर जाके उसका टेंट जो है लगा लेता है। ये जो ट्रांजिट होम्स, ओके, ट्रांजिट ट्रांजिट होम का मतलब है कि मूवेबल, टेम्परेरी, हाँ, मूवेबल होम
टेम्पोररी होम, राइट। तो वही उसका घर बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। तो उसका जो बच्चे है वो भी उसका भी तो दे टेक बार्थ एंड दे ग्रो अप लाइक दिस पार्टनर्स इन सर्वाइवल। दे नीड टू वर्क। ओके, ये जो चिल्ड्रेन है वो पार्टनर ऑफ सर्वाइवल क्यों है? क्योंकि दे नीड टू अर्न मनी, राइट। उनका ऐसा नहीं है कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं। खाने का चीज मिल जाए तभी तो वही अच्छा है, तो उसको अर्न करना ही पड़ता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। सीमापुरी में सर्वाइवल का एक ही मीनिंग है, वो है रैक पिकिंग। उसके अलावा कोई जॉब और कोई दूसरा वाला प्रोफेशन अवेलेबल भी नहीं। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। ओके, ये लोग इतना दिन से रैक पिकिंग का जो काम है इसमें बिजी है कि ये एक फाइन आर्ट जैसा बन गया। ओके, ये एक वो लोग ऐसा आर्टिस्ट का तरह काम करता है। ठीक है, हम लोग क्या है कि क्या इतना साल से पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, तो इसमें वी बिकम वी ट्राई टू डू समथिंग थ्रू स्टडिंग। वो क्या है, रैक पिकिंग में वो लोग इतना अच्छा है कि वो रैक पिकिंग में ही आर्टिस्ट बन गया। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन इट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। इट इज देयर डेली ब्रेड, a roof over their heads। ये क्या है, ये उसका डेली ब्रेड, ये उसका जो फूड है, ये रैक पिकिंग से ही आते हैं। ओके, a roof over their heads, इनसे ही उसका शेल्टर मिलता है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, वो जो रूफ है उसमें से पानी आ रहा है, लीकिंग हो रहा है, लेकिन रूफ तो रूफ ही है ना, तो जैसा ही हो जाए। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। ओके, फॉर द चाइल्ड इट इज इवन मोर, क्योंकि चाइल्ड का पास तो जीने का और भी रिसोर्सेस कम है ना। चाइल्ड का पास ये जो है गार्बेज पिकिंग, ये जो है ये और भी ज्यादा है। ओके, सो वी विल बी स्टॉपिंग हियर। इन द नेक्स्ट क्लास I will ask for meanings of the last 4 lines. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold, daily bread, and but for a child it is even more. In tomorrow's class, I will be asking different meanings of these 4 lines. क्योंकि ये जो 4 लाइन है इसका different meaning हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसका एक ही meaning होगा, right? So we will be stopping here, and your next task is I will be asking the explanation of these 4 lines. Okay? Any question? No sir. Sir, last line समझ में नहीं आया। But for a child it is even more. जो बच्चे होता है ना, जो चिल्ड्रन होता है, उसको पास रैक पिकिंग के अलावा दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरा बात ये है कि ये जो खाना मिलना, शेल्टर मिलना, ये तो चाइल्ड के लिए और भी क्रिटिकल बात है ना। ये तो एक चाइल्ड के लिए, एक जो बच्चा है उसके लिए ये तो आई मीन दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। ये जो है आई मीन फॉर garbage is gold to the adults, but for a child it is more than the gold. Okay, Yes sir. anything else? I will be asking the meaning of these 4 lines. Prepare it beforehand. Metaphorically means Metaphorically means जो दूसरा वाला का मीनिंग होता है। मैं बताया एक चीज, लेकिन दूसरा वाला मीनिंग हो रहा है। ओके, चल मेटाफोर का बारे में नेक्स्ट क्लास में हम और से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? जस्ट एक बार रिमाइंड कर देना। Sir, Yes. sir, I have confusion regarding the pronunciation of the writer
of this story. Isn't it pronounced as Anis Jung? Anis Jung एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश में जो हम आई मीन जो आई मीन इफ इफ यू प्रोनाउंस इट लाइक द इंग्लिश आई मीन लाइक द इंग्लिश पीपल ये यूं होता है, राइट? There is a psychologist called Jung as well. So Anis Jung, yeah, you can say it Anis Jung. Anis Jung भी हो सकता है. I mean, मैंने तो Anis Jung में, I mean, I am familiar with the pronunciation of Anis Jung. Okay, so okay, both are, I mean, both are correct. इसमें कोई, I mean, we are not, I mean, if you say Anis Jung, so no one can say that you are wrong. Jung भी हो सकता है, Jung भी हो सकता है, Anis Jung और Anis Jung. Jung कोई सरनेम होता है इंडिया में, Jung तो मैं सुना है बाहर में. So what we can decipher from it is that both are correct, Anis Jung or Jung. Okay, you can choose any one of it. Okay, sir. Okay. Any other question? So devoid means Devoid means lacking. Okay, devoid of means lacking something. DEVOID. Deployed means DEVOID. Devoid, DEVOID. Devoid मतलब Yes, lacking sir. something. We are devoiding of food. We are devoid of any resources. Okay, deployed का मतलब है कि the army is deployed in Kargil. Okay, करगिल में आर्मी को डिप्लॉय किया गया है, पोस्टिंग कर दिया ऐसा. Okay, so if you don't have any question, you can leave the class now. Have a nice day. Thank you, sir.